خوشی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ پر امید ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کرے گی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم نے کہا، بحران کے دوران ایران کے عوام نے مثالی جرأت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو، کہا صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے تعمیری ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان اور ایران یک جان دو قالب ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی تعلقات منفرد نوعیت کے حامل ہیں۔ دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر کی ملاقات، علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف، کہا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کا ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر شاندار فضائی استقبال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں خصوصی اسکواڈ نے سلامی دی۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی فارمیشن نے ایرانی صدر کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لیا۔ فضائی فارمیشن لیڈر کی جانب سے معزز مہمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہیں، آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اپوزیشن کو واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے محمود اچکزئی نے حکومت کو غیر قانونی کہا۔ کیا 2018 کے الیکشن میں جادوگری نہیں ہوئی؟ بیلٹ باکس نہیں بھرے گئے؟ اگر وہ غیر قانونی حکومت نہیں تھی تو یہ بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان فاصلے کم ہوئے، جنگ بندی ہو چکی، امید ہے 60 دن میں جامع معاہدہ اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ ایران کے صادقہ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان ایرانی قوم کے حقوق کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ سفارتی کوششیں بڑھانے میں پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، دورے کا مقصد پاکستان کے کردار کو سراہنا ہے۔ امید ہے MOU کے مکمل نفاذ سے مشرق وسطی میں تناؤ میں کمی ہوگی۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا، بات چیت میں توجہ تجارت، معیشت، ثقافت، سلامتی، دفاع اور وسیع تر علاقائی امن و استحکام میں تعاون کو وسعت دینے پر مرکوز ہوگی۔ ایران نے مستقبل کے لیے جوہری تنصیبات کی نگرانی پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اس پر متفق نہ ہوتا تو مزید کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ ایران کے اہم سمجھوتوں کے نتیجے میں آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنے اور مزید بحری ناکہ بندی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضرورت پڑی تو امریکی جہاز فوری ناکہ بندی کے لیے موجود ہیں۔ امریکی خزانے سے جاری کردہ فنڈز یا پابندیوں میں نرمی براہ راست امریکہ کے زیر کنٹرول اکاؤنٹ میں جائے گی، جسے صرف امریکی مکئی، گندم اور سویابین سمیت خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایران کو اس وقت ان اشیاء کی اشد ضرورت ہے۔ بہت دیر ہونے سے پہلے ایران کی مدد کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں۔ جوہری معائنہ کاروں کو ایران آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تردید، کہا اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کے ساتھ بات چیت پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے طے کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی۔ امریکہ نے تیل پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا کہنا ہے، منجمد فنڈز میں سے $12 ارب بحال کیے جائیں گے۔ $6 ارب کی 2 قسطیں جاری کی جائیں گی۔ حتمی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پابندیاں برقرار ہیں۔
आबना हुर्मुज का इंतजाम ईरान के पास ही रहेगा। लबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ। 80 मिनट की मुज़ाकरात के दौरान जब सदर ट्रंप ने धमकी आमेज पोस्ट की तो जेडी वांस को साफ कहा था, हम दबाव और धमकियों में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सालिसों को भी बता दिया था कि अमरीकियों के साथ तस्वीर के लिए एक फ्रेम में नहीं आएंगे। स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाजत दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसा तरीकाकार कायम कर लिया जिससे आबना हुर्मुज खुली रहेगी। ईरानी वक्त के हाथ ना मिलाने पर कोई हैरानी नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का कहना है हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। इनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और नफाज का वर्किंग ग्रुप शामिल। इब्तदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा जिसमें ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर, वजीर खारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। ने मुल्क की इज्जत को 4 चांद लगाए। ऑपोजिशन को चाहिए वो खुले दिल से हुकूमत की कोशिशों को तस्लीम करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स पर हर चीज किए बगैर करनी पड़ी। जो हालात थे उस वक्त मजबूरी थी। ऑपोजिशन वाले भी माजी के उन तमाम फैसलों और गुनाह में शामिल हैं। हमारे दौरे हुकूमत पे किए जाने वाले इकदाम पर लेक्चर देना मुनासिब नहीं। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, हुकूमती तरामीम मंजूर कर ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल पेश किया। माली साल 2026-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 36 खरब 69 अरब रुपए रखा गया है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी वजारतों की तरक्याती फंड्स के लिए 682 अरब 48 करोड़ से जायद मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ा हिस्सा अबी वसाइल डिवीजन को 103 अरब 80 करोड़ मिलेगा। हमारी मईशत का दारोमदार अफगानिस्तान से तिजारत पर है। इस वक्त हमारे सूबे और जम-अज़लाह में अमनी जंग है। जम-अज़लाह के लिए NFC में 3% शेयर का वादा पूरा नहीं किया गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं इंडस्ट्रीज बंद है, रोजगार और कारोबार नहीं है। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के 434 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। हमें पानी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर के इल्जामात पर जवाब। कहा मुझे बताया जाए मैंने कहा आइन तोड़ा। आप पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान का साथ देने का कहेंगे तो बात करने नहीं दूंगा। फौज और अदलिया के खिलाफ बात करेंगे तो नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान के आइन पर अमल करना, आइन तोड़ना है तो बार बार तोड़ूंगा। इसराइल की हटधर्मी बरकरार। जुनूबी लेबनान से फौज निकालने से फिर इनकार। इसराइली फौज जुनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, वजीर दिफा इसराइल काद्स और आर्मी चीफ ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज से मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का आगाज करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टॉमी पैगट का कहना है मार्को रूबियो कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरान से मफाहमती यादाश्त से मुताल्लिक मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। आबना हुर्मुज की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। फारूक सत्तार ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबात सामने रखे हैं। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई है। आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है। नून लीग और MQM की मुश्तरका कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जाएगी।
सिंध की गवर्नरशिप MQM को देने का मुतालबा बरकरार है। लापता कारकुनान की तलाश का मुतालबा वजीर आजम के सामने रखा है। केपी हुकूमत ने 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। विफाक ने भी खैबर पख्तूनख्वा को बजट में कोई खास रिलीफ नहीं दिया। वजीर आला केपी इस्लामाबाद अपना हक लेने गए थे, लेकिन हक देकर आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में PTI की हुकूमत है तो आवाम का क्या कसूर है। गंडापुर सोहेल आफरीदी के बजट पेश करने पर एतराज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ किया कि वो नाअहल थे। क्या बानी PTI से मुलाकात से बजट सरप्लस हो जाएगा? आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। PTI के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन। मुहाजिरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के हलकों से कागजात जमा करवाने वालों की तादाद 148 हो गई। मजबूरी तौर पर 45 इंतखाबी हलकों से 772 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अमन अमान कायम करना हुकूमत की तरजीह है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। कालादम एक्शन कमेटी का एजेंडा अब किसी से ढका छुपा नहीं। धरने देने वालों से गुजारिश है गुमराहकुन तहरीकों का हिस्सा न बने। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जायज मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को 20 से 25 अरब फराहम किए। जो मामला काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद किया गया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को सजा से पहले हतमी नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। इससे पहले अदालत ने DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अब मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस की हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब डिजिटल सिस्टम और कैमरे चोरी पकड़ेंगे। टैक्स वसूली की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से फैसलाबाद डिवीजन की अमन कमेटी की मुलाकात। मुहर्रम में अमन, रवादारी और भाईचारे की फजा पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अज़मा बुखारी ने कहा, अमन कमेटी और मजालिस की मुंतज़मीन के दरमियान बाहमी रवाबित खुशाइन बात है। आशूरा के जुलूस और नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम आहंगी पैदा की जाएगी। पंजाब हुकूमत और इसके तमाम इदारे अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। बेशतर स्कूल बंद, मुतादिद के औकात तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हलाक होने वालों में एक पुलिस अफसर और शहरी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी है।